Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 3, that is Transmitters and Receiver. I welcome all for the today's topic of discussion on FM detector. The course outcome for this course as maintain transmitters and receivers of AM and FM. AM, that is the amplitude modulation, and FM, that is the frequency modulation. And what are the different transmitters and receivers of amplitude modulation and frequency modulation, we will discuss here. The chart shows that is CO and PO mapping. Here the CO3 of chapter 3 getting mapped with the PO1, PO2, 3, 4, 8 and 10 at the highest level, while for the PO6 and PO9 at the lowest level. After the completion of this course, students will be able to compare the working of given types of FM detectors. We will discuss here what are the different types of FM detectors and what is the difference between in that particular FM detectors. In the last lecture, we have studied about what is FM receiver, block diagram of FM super heterodyne receiver, then advantages of super heterodyne receiver. By using super heterodyne principle, we have discussed FM super heterodyne receiver. Let's come towards the main point, that is the demodulator. Demodulator, it is the same name for the detector. Here detector, it is at the time of receiver we will use here. So demodulation क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डीमॉड्यूलेटर के पास जाने के पहले वी मस्ट हैव टू नो व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन. तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन इज द एक्ट, क्या है? इट इज अ एक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल. मतलब ऐसा एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल सिग्नल को बेयर करता है, दैट इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव. ऑल ऑफ यू नो दैट कि जब भी अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते थे तो ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करते थे. इज दैट क्लियर? अभी मुझे फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल टू द ओरिजिनल सिग्नल मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसी प्रोसीजर के लिए मैं यूज करूंगी क्या? डी मॉड्यूलेशन. मतलब जो भी मेरी इंफॉर्मेशन मैंने भेजी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, उसको मुझे ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. दैट प्रोसीजर इट इज कॉल्ड एज द डी मॉड्यूलेशन. अ डी मॉड्यूलेटर is an electronic circuit. क्या होता है? It is an electronic circuit used to recover the information contained from the modulated carrier wave. अभी modulated carrier wave मतलब क्या? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उस इंफॉर्मेशन को मुझे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, एंड उसके लिए जो डिवाइस जो सर्किट यूज करते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज द डी. What are the different types of FM demodulator? अभी FM demodulator के कौन से टाइप है? तो this FM demodulator can be divided into two methods. कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? Divided into two different methods. That is, one is the direct FM demodulator which consists of the slope detector, balance detector, उसके बाद में phase discriminator and then ratio detector. And the second part, it is nothing but the indirect FM modulator which consists of the PLL, that is the phase lock loop detector. So let's come towards the first part, that is the slope detector. Here this diagram shows the slope detector. It is called as the simple slope detector. What it is? Simple slope detector. और अगर आप सर्किट में देख रहे हो तो सर्किट में यहाँ से आप लोगों को इनपुट सिग्नल देना है और वी विल गेट द आउटपुट सिग्नल. इतनी चीज़ क्लियर है? देखो यहाँ पे होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी अपन एफएम डिटेक्टर को यूज़ करते हैं तो एफएम डिटेक्टर में जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कम्स बिकॉज ऑफ ट्यून सर्किट. किससे मिलती है? ट्यून सर्किट से. तो दिस इज द ट्यून सर्किट. ये क्या है? ट्यून सर्किट. ट्यून सर्किट क्या होता है? ट्यून सर्किट एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है. क्या करता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है. तो जैसे ही मैंने एफएम के इनपुट सिग्नल दिए, कौन से सिग्नल देंगे अपन? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल.
क्योंकि मुझे उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को पता है कि जब भी मैं ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मॉड्यूलेटिंग इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो दैट सिग्नल कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कितने फ्रीक्वेंसीज कंसिस्ट करता है? एक तो लोएस्ट साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और द कैरियर फ्रीक्वेंसी, ऐसे 3 फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है। तो देखो जैसे ही यहाँ पे एफएम का इनपुट सिग्नल मैंने दिया, ये ट्यून सर्किट को जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, that signal consists of the 3 different frequency. One is the center frequency, which is also known as the carrier frequency, then the upper sideband frequency and the lower sideband frequency along with the frequency deviation, along with the frequency deviation। और आप सभी को पता है जब भी इनपुट सिग्नल आता है, इनपुट सिग्नल कंसिस्ट ऑफ द 2 different frequency, one is the carrier signal frequency and the second one is the modulating frequency। बराबर है। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो मिलती है आप लोगों को, उसको अपन क्या करते हैं, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी मिलती है आप लोगों को, उसको अपन लोअर और अपर में कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए मुझे फ्रीक्वेंसी मिलती है FO प्लस डेल्टा एफ और FO माइनस डेल्टा एफ। क्लियर एवरीवन? देन जैसे ही ये सिग्नल मैंने ट्यून सर्किट को सिग्नल मिले, ट्यून सर्किट क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जैसे ही जनरेट करेगा, यहाँ पे आप लोगों ने एक डायोड डिटेक्टर लगाया हुआ है, जो कि आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज और डिस्चार्ज करेगा बाय यूजिंग द डायोड। यहाँ पे आपने क्या लिखा है? डायोड कैपेसिटर लगाया, मतलब जो भी चेंजेस आपने डायोड को वोल्टेज की मतलब फ्रीक्वेंसी के रेंज कम ज़्यादा होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मोड में आते जाएगा। और आप लोगों को जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मिली थी, दैट फ्रीक्वेंसी कम्स इनटू द ओरिजिनल सिग्नल। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों का जो स्लोप है, सिंपल स्लोप डिटेक्टर में क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसीज आप दे रहे हो वो एक लिमिटेड रेंजेस में रहेगी। ठीक है, लिमिटेड रेंजेस में होने के कारण अगर कोई एक हायर लेवल की फ्रीक्वेंसीज को आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है आप लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही वो लीनियर फॉर्म में मिल रही। किसमें मिल रही? लीनियर फॉर्म में मिल रही है, जो कि लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज दे रहा है। सो it is difficult to adjust the primary and secondary winding of the transformer। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ट्यून फ्रीक्वेंसी को, ट्यून सर्किट के थ्रू ट्यून फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं करेंगे। इसीलिए सिंपल स्लोप डिटेक्टर के ये जितने भी ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करने के लिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आया था, दैट इज द नथिंग बट बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। उसके पहले मैं आपको इसको कुछ लिमिटेशंस बता देती हूँ। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ और द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल स्लोप डिटेक्टर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इनएफिशिएंट। क्या है ये? इट इज इनएफिशिएंट as it is linear in very limited frequency range. It is inefficient as it is linear in very limited frequency range. उसके बाद में it reacts to all amplitude changes। ये जितनी भी बार एम्पलीट्यूड चेंज होते रहेगा उतनी बार FM डिटेक्टर रिएक्ट करते रहेगा। It is relatively difficult to tune as compared to other FM detectors। It is relatively difficult to tune as tune circuit must be tuned to different frequency than carrier frequency। क्या होता है? ट्यून फ्रीक्वेंसी जो भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है उसने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना ज़रूरी है। बट अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी एफएम सिग्नल देने के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी मिली थी? कैरियर फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जिसके कारण ये ट्यून करने को डिफिकल्ट जाता है। क्या? सिंपल स्लोप डिटेक्टर। और दीज आर द लिमिटेशन जो कि अब मुझे ओवरकम करना है। उसके लिए हमने नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। क्लियर एवरीवन? सो दिस सर्किट डायग्राम शोज द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। आप लोग देखोगे यहाँ पे ये जो डायग्राम है, दिस इज नथिंग बट योर सिंपल स्लोप डिटेक्टर और दिस इज ऑल्सो सिंपल स्लोप डिटेक्टर। बराबर है? तो यहाँ पे देखो
दो सिंपल स्लोप डिटेक्टर को कनेक्ट करके आप लोगों ने किसको बनाया, बैलेंस लूप डिटेक्टर। यहाँ पे आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो सेंटर टैप्ड है। सेंटर टैप्ड हुआ है, क्यों सेंटर टैप्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने दो स्लोप डिटेक्टर यूज किए, यहाँ पे सिंपल स्लोप डिटेक्टर 1 और सिंपल स्लोप डिटेक्टर 2। उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे जैसे ही इसको FM का इनपुट दिया, दैट इनपुट गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट, जिसका आधा पार्ट किसको जा रहा है, सिंपल स्लोप डिटेक्टर को, और सेकेंड पार्ट जा रहा है अनदर सिंपल स्लोप डिटेक्टर को। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, बराबर है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में FC प्लस डेल्टा एफ, FC माइनस डेल्टा एफ, और ऐसे 3 फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट फ्रीक्वेंसीज है, गिवन इनपुट फ्रीक्वेंसी है, वो कभी कम हो सकती है एज कम्पेयर टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, कभी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे डिफरेंट केसेस में बैलेंस लूप डिटेक्टर वर्क करेगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो व्हेन वी विल गेट द आउटपुट बाय यूजिंग द 2 डिफरेंट स्लोप डिटेक्टर, सबसे पहले कंसिडर आएगा कि जैसे ये ट्यून सर्किट को इनपुट सिग्नल दिया, उसने जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट की, उसके थ्रू आपको 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिली। कौन सी, FC प्लस डेल्टा है, FC माइनस डेल्टा है, क्लियर। उसके बाद में सबसे पहली केस क्या हो सकती है, तो इनपुट सिग्नल जो है वो कैरियर सिग्नल के जैसे सेम हो सकता है, बराबर है। अगर इनपुट सिग्नल कैरियर सिग्नल के जैसे सेम रहा तो क्या होगा, जो भी वोल्टेज ये डायोड D1 और D2 पे आने वाला है, बराबर है, ये जो वोल्टेज डायोड D1 और D2 पे आने वाला है वो क्या करेगा, सेम रहेगा, बट उसकी पोलैरिटी डिफरेंट रहेगी। मतलब डायोड D1 पे आने वाला वोल्टेज रहेगा प्लस V1, और यहाँ पे D2 पे आने वाला वोल्टेज जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, माइनस VO2। इसके कारण क्या होगा, अगर यहाँ पे VO1 इज इक्वल्स टू 1 रहता है, मतलब V1 इज इक्वल्स टू 1 रहता है, और V2 इज इक्वल्स टू भी 1 रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने दोनों को कंबाइन किया तो पोलैरिटी तो सेम है ना, पोलैरिटी तो सेम है, सॉरी डिफरेंट है, तो V1 प्लस V2 अगर मैंने किया, V1 प्लस V2, बट मुझे यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, बराबर है। V1 प्लस V2 अगर मैंने किया फर्स्ट केस में, कब, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के जैसे सेम होगी, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, V1 प्लस V2। तो V1 से जनरेट होने वाली वोल्टेज कितना था, +1, और V2 से आने वाला वोल्टेज था -1। तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस गेटिंग माइनस, क्या होगा, प्लस एंड माइनस गेटिंग माइनस, जिसके कारण यहाँ पे V1 माइनस V2 इज मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, 0, बराबर है। अगर मेरी इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी के जैसे सेम रहेगा तो आई विल गेट द 0 एट द आउटपुट, मतलब मुझे कोई भी सिग्नल वहाँ पे नहीं मिलेगा। देन सेकेंड सिग्नल अगर मैंने दिया कि मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी, क्या है, लोअर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी, अल्सो लोअर देन द FC माइनस डेल्टा है, क्या है, पहली कंडीशन क्या थी, F in इज इक्वल्स टू FC। सेकेंड कंडीशन ये है कि FC इज लोअर देन F in इज लोअर देन FC प्लस डेल्टा F। इसके कारण क्या होगा कि पहला जो केस है, यहाँ पे पहला जो ट्यून सर्किट आपका है, वहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो वोल्टेज डायोड का और ट्यून सर्किट का सेम रहेगा। सेम वही जो ट्यून सर्किट सेकेंड पे वोल्टेज इंड्यूस रहेगा वो डायोड D2 के जैसे होगा, बट जो वोल्टेज डायोड D1 में इंड्यूस होने वाला है वो ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू D2, एज कम्पेयर टू D2, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज द निगेटिव, बराबर है, दैट इज द निगेटिव, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने 5 वोल्ट दिया, क्योंकि ये मेरा ग्रेटर है, और यहाँ पे मैंने 0 दिया,
तो 5 माइनस 0 मतलब मेरा क्या वोल्टेज आएगा, पॉजिटिव। क्या वोल्टेज आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो सेकेंड केस में आने वाला वोल्टेज रहेगा वो रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। वही अगर थर्ड केस मैंने दिया कि एफ सी माइनस डेल्टा एफ इज लेस देन, मतलब एफ सी इज ग्रेटर देन एफ इन इज ग्रेटर देन एफ सी माइनस डेल्टा एफ, तो मेरा यहाँ पे कौन सा वोल्टेज इंड्यूस होगा, निगेटिव। तो मेरी थर्ड केस क्या आएंगे, निगेटिव। समझ में आया? ऐसे 3 केस में बैलेंस स्लोप डिटेक्टर वर्क करता है। अपन यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको वेवफॉर्म में दिखेगा। सबसे पहले कि जब अपन सिंपल स्लोप डिटेक्टर को यूज करते थे तो सिंपल स्लोप डिटेक्टर के पास 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी। वन इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज द एफ सी प्लस डेल्टा है, और यहाँ पे अगर आए तो एफ सी माइनस डेल्टा है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही कैरियर फ्रीक्वेंसीज आपको मिली थी तो सिंपल स्लोप डिटेक्टर में 1, 2, 3 इतने ही फ्रीक्वेंसी तक अपन लिमिटेड थे, इतने ही फ्रीक्वेंसी तक अपन लिमिटेड थे, जिसके कारण मुझे पूरा फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता था। मिल रहा था क्या, क्योंकि अपन तो यहाँ तक ही लिमिटेड थे ना, अपने को यहाँ तक ही फ्रीक्वेंसीज मिल रही थी, जिसके कारण मुझे एम्पलीट्यूड चेंज कंटिन्यूस हो रही थी और फ्रीक्वेंसी का जो ओरिजिनल वेवफॉर्म है वो नहीं मिल रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ा, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस को बढ़ाना पड़ा और उसको डिफरेंट केसेस में वर्क करवाना पड़ा, बराबर है। तो डिफरेंट केसेस में कैसे वर्क कर रहा था, तो डिफरेंट केसेस में आपको मिल रहा था कि जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे एफ सी प्लस डेल्टा एफ और एफ सी माइनस डेल्टा एफ के डिफरेंट केसेस को यूज किए, एट दैट टाइम आई विल गेट द आउटपुट वेवफॉर्म एंड द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थ्रू द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या है, इट इज मोर इफिशियंट एज कंपेयर टू सिंपल स्लोप डिटेक्टर। बट ये जो 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपके ट्यून हो रहे थे उसको आप लोगों को डिफिकल्ट था ट्यून करना 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, उसके कारण आपका एम्पलीट्यूड जो है लिमिटेशन वो प्रोवाइड नहीं हो रहा था। क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट पार्ट इट इज नथिंग बट द रेशियो डिटेक्टर। क्या होता है रेशियो डिटेक्टर? तो देखो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द रेशियो डिटेक्टर। सिंपल एकदम, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। चेंजेस इतना है कि आप लोगों का जो डायरेक्शन है डायोड का वो थोड़ा सा अलग साइड से, मतलब अपोजिट साइड में, और यहाँ पे आप लोगों ने जो ट्यून सर्किट लगाया है ये दिस इज द ट्यून सर्किट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डायोड एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डायोड। सेम कंडीशन जैसे अपन ने बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में यूज किए थे वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे यूज करना है, बट यहाँ पे 3 ही कंडीशन रहेंगे। या तो इनपुट सिग्नल इज इक्वल्स टू कैरियर सिग्नल, इनपुट सिग्नल इज ग्रेटर देन कैरियर सिग्नल, और इनपुट सिग्नल इज लेस देन कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इनपुट ट्रांसफॉर्मर की वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होती है as the center frequency, that is the carrier frequency, and this simplifies the tuning process of as compared to the balance loop detector. Balance loop detector में क्या होता था, 3 different frequencies को ट्यून करता था, that is FC plus delta F, FC minus delta F. बट रेशियो डिटेक्टर में क्या करता है कि जैसे ये इनपुट ट्रांजिस्टर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होता है जो कि ट्यून फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी होती है, बराबर है। ट्यून फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होता है कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसके कारण इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो एज कंपेयर टू बैलेंस लूप डिटेक्टर इजी है। देन देखो यहाँ पे आप लोगों को कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं कि जैसे इसने ट्यून किया इट कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, एफ इन एफ सी प्लस डेल्टा एफ एंड एफ सी माइनस डेल्टा एफ। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आपको कंडीशन मिली कि आपको एफ इन इज इक्वल टू एफ सी है तो आप लोगों को जो वोल्टेज मिलेगा एट द आउटपुट साइड दैट इज 0, क्योंकि ये सेम फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं जी। जैसे ही मैंने इसको एफ इन इज ग्रेटर देन एफ सी किया, एफ इन इज ग्रेटर देन एफ सी किया, ये जो इनपुट सिग्नल है वो एफ सी से ग्रेटर है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस है वो स्लोप जो है वो
बढ़ता जाएगा मैक्सिमम पोजीशन पे और विल गेट हियर द पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव वोल्टेज। वही अगर मेरा यहाँ पे निगेटिव सिग्नल जनरेट हो रहा है, मतलब मेरी Fn इज लेस देन Fc, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, वो कम कम होती जाएंगी। वी विल गेट द आउटपुट एज अ निगेटिव सिग्नल। तो देखो यहाँ पे ये है डायग्राम। चेंजेस इतना है कि यहाँ पे डायोड का डायरेक्शन अपोजिट साइड में लगाना है और ये जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको डायरेक्टली कनेक्ट करना है किसके साथ? ट्यून सर्किट के साथ। देन वी विल गेट द R3 and C3 एज कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद में D2 की डायरेक्शन रिवर्स रहेगी। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू, ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा ये VO1 माइनस VO2 बाय 2 के जैसे मिलेगा। देन यहाँ पे आप लोगों को एक कैपेसिटर आप यूज कर रहे हो, लार्ज कैपेसिटर जिसको अपन बोलेंगे विच इज नथिंग बट द C5, जिसको अपन एम्पलीट्यूड लिमिट, जिसके कारण एम्पलीट्यूड लिमिटर की कोई भी रिक्वायरमेंट रेशियो डिटेक्टर में नहीं होगी। समझ में आया? अभी अपन एम्पलीट्यूड लिमिटर को क्यों यूज करते? तो एम्पलीट्यूड में जो भी वेरिएशन आता है सिग्नल के, उसको रोकने के लिए अपन यूज करते क्या? एम्पलीट्यूड डिटेक्टर। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर रेशियो डिटेक्टर. Next and the most important part, it is the PLL, which is also called as the phase lock loop. So this is the block diagram of phase lock loop. देखो सबसे पहले important चीज ये है कि this phase lock loop consists of the different blocks like the phase detector, low pass filter, amplifier and voltage control oscillator. So this phase detector consists of the two different input, that is the one input which comes from the FM signal and the second from the feedback from voltage control oscillator. क्या है? feedback from voltage control oscillator. तो यहाँ पे FM इनपुट के साथ आने वाले और वोल्टेज ऑसिलेटर के साथ आने वाले ऐसे दो सिग्नल आपको मिलेंगे टू द फेज डिटेक्टर. ठीक है, फेज डिटेक्टर क्या है? इट इज नथिंग बट द बैलेंस मॉड्यूलेटर. ये क्या है? बैलेंस मॉड्यूलेटर विच प्रोवाइड्स द एवरेज आउटपुट. क्या प्रोवाइड करता है? एवरेज आउटपुट विच इज इन द लिनियर फंक्शन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट सिग्नल. ये जो टू इनपुट सिग्नल इसको मिले, इसके बीच का फेज डिफरेंस है, ये प्रोवाइड करता है कौन? फेज डिटेक्टर. That's why this phase detector is continuously known as the balance modulator. Then after the balance modulator, this signal R goes towards the or transmitted towards the low pass filter. Low pass filter क्या यूज करेगा? तो यहाँ पे जो सिग्नल आया हुआ है that consists of the low frequency signal. That's why we will use here low pass filter, because low pass filter transmit only the low frequency signal through the filter. Then क्या करेगा? The frequency component is selected by the low pass filter. ये क्या करेगा? Frequency component selected by the low pass filter which also removes the noise. क्योंकि फिल्टर का काम ही है कि नॉइस को रिमूव करना. Then low pass filter क्या करेगा? यहाँ से आने वाले सिग्नल में अगर कोई नॉइस बचा हुआ है उसको रिमूव करके वो सिग्नल आगे भेजेगा टूवर्ड्स द एम्पलीफायर. एम्पलीफायर क्या करेगा? सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मतलब ऑटोमेटिकली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड वी विल गेट द डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट. क्या मिलेगा अपने को? डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट. व्हेन बट उसके पहले अपने को जानना है कि ये VCO का काम क्या है. तो जब से ही ये कंप्लीट लूप, ये जो कंप्लीट लूप है ये लॉक हो जाएगा, जैसे ये कंप्लीट लूप लॉक हो जाएगा, देन VCO फ्रीक्वेंसी फॉलो द FM सिग्नल फ्रीक्वेंसी. VCO क्या फॉलो करेगा? FM के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को फॉलो करेगा और जो भी एरर एम्पलीफायर में एम्पलीफाई करते टाइम आ रहे थे उसके फ्रीक्वेंसी को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा. किसको? डेविएशन ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी. डेविएशन ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ
फेज लॉक लूप, जिसमें आप लोगों ने यूज किया क्या, एफएम इनपुट, टू टाइप्स ऑफ एफएम सिग्नल, जो आप लोगों को वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के फीडबैक एलिमेंट से कहा रहा था, जिसको आपने फेज डिटेक्टर के पास रखा। फेज डिटेक्टर ने क्या किया, इन दोनों के सिग्नल के बीच का फेज डिफरेंस प्रोवाइड किया। जैसे ही सिग्नल मिले आप लोगों ने दैट सिग्नल गोज टूवर्ड्स द लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का काम क्या था कि उस सिग्नल में अगर नॉइस है उसको रिमूव करके दैट सिग्नल किसके पास आए, एम्पलीफायर के पास। बट एम्पलीफायर के पास सिग्नल एम्पलीफाइड करने के बाद आपको वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के थ्रू अगर सिग्नल में कोई एरर्स आ रहे हैं तो उसको रिमूव करके आप किसके साथ रिमूव करने, बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ सेंटर फ्रीक्वेंसी, और देन we will demodulated that signal by using the demodulator and we will get the original information. Clear? तो देखो as compared to other detector it is having the linearity at the highest level. So these are the different types of FM detectors and we'll going to conclude this unit 3 here and we will start the next unit in the next video series. So this lecture summarizes as what is demodulation. उसके बाद में अपन ने देखा different types of FM demodulator which is also called as the FM detector. उसके बाद में detailed explanation of slope detector, balance slope detector and the ratio detector. So thank you so much for listening this lecture, and in the next lecture we will study about unit 4, that is the wave propagation. Thank you.